beyond excellence for a brighter tomorrow. Excellence is an art, won by practice and persistence. We at Kamdhenu Realities have been excelling since 1955, winning the hearts of customers and confidence of our stakeholders with an aim to go beyond excellence. We explore the unexplored, we attain the unattainable, and we conquer the unconquerable. Mr. Surinder Sablok, the guiding icon of Kamdhenu Realities, has been the group's torchbearer. Under his visionary leadership, the group has expanded from infrastructure projects to residential and hospitality as well. He has had a long-term association with ZIDCO. Mr. Surinder Sablok has not only made Kamdhenu Realities a force to be reckoned with, but he has also held the position of Vice President for BANM, Builders Association of Navi Mumbai. I am Surinder Sablok. The feeling of being the torchbearer of the company, which is growing at a phenomenal pace, is beyond words. We believe in going the extra mile to be ahead of others. The future belongs to those who dare to dream differently. We are working towards a better tomorrow. Thank you. And then there was no looking back. Be it government works or commercial or residential ventures, we soared to new heights and stood apart, carrying his illustrious father's unrivaled legacy forward. Construction and development came naturally to Mr. Karan Sablok as a third-generation Sablok. With his particularly keen business acumen and quick learning, he is gradually and steadily carrying the complete force of the company by creating several exemplary mixed-use edifices, commercial properties and residential marvels. My name is Karan Sablok and I am a partner at Kamdhenu Realities. Kamdhenu Realities was the brainchild of my grandfather, Mr. Anantram Sablok. However, Kamdhenu was converted into a reality by my father, Mr. Surinder Sablok. The brand name Kamdhenu Realities is synonymous with faith, trust, good quality and timely delivery. Kamdhenu Realities is among the most trusted and among the oldest brands of Navi Mumbai in terms of real estate. We at Kamdhenu Realities are trying to cater to every segment of the market, whether it is budget homes, whether it is luxurious homes in some of the most iconic locations of Navi Mumbai, whether it is small office spaces or whether it is large floor plates required by multinationals. We have recently also ventured into IT/ITES category of lands. We are also diversifying into hospitality very soon. Kamdhenu Realities is extremely thankful for the support and love and faith that we have received from all of our clients, from all of our channel partners and all the brands that are associated with us, all the vendors and ancillaries that are associated with us. Today, we are a market leader in the creation of landmarks in and around Navi Mumbai. Mrs. Roshni K. Sablok, with her thorough knowledge of the industry, provided us with the ideal direction for reaching out to our target audience in the most dynamic ways. She is pioneering many new initiatives in sales and marketing for the organization. While branding and marketing are quintessential for any organization, but if they are not backed by the right product, timeline and ethics, their effects are often short-lived. Through the right tools, we strive to communicate only the key aspects related to amenities, location. This is where my expertise comes into play. I, Roshni Sablok, handle the entire marketing and branding division of our organization. For the past decade, I have tried my very best to put all my learnings into practice through my work. We set new benchmarks with innovative techniques, strategic planning, intellectual integration, consumer-first approach. With this philosophy, we have over 2,300 happy families, 2.3 million square feet upcoming work, 1.95 million square feet completed. And while many aspire to own an exceptional lifestyle, we inspire it. List of completed projects: Mangla Tower, CBD Belapur, Pride, Kharghar, Eden Garden, Kharghar, Shri Sakshat, Kharghar, Landmark, Kharghar, Kamdhenu Business Bay, Nerul, Kamdhenu Aura, Taloja, Kamdhenu Oaklands, Ulve, Zion, Kharghar, Kamdhenu Commerce, Kharghar, Gardenia, Taloja, Excellencia, Dronagiri.
Our ongoing projects are the newest addition to our legacy of going beyond excellence. Kamdhenu 23 West, Kopar Kherne. Kamdhenu Vogue, Sanpada. Our excellence doesn't limit here, with more marvels in the making. Two commercial icons in the heart of Vashi. A stunning residential project in Nerul. A dreamlike residential project in Sanpada. A lavish 6,20,000 square feet township in Upper Kharghar, bringing you closer to the icons of signature living experiences. At Kamdhenu Realities, we consider customers' smiles are our greatest reward. Customers' blessings are our strongest motivation to shape the new tomorrow for everyone's brighter future. Kamdhenu Realities, beyond excellence. नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। आज जो हमारे खास मेहमान हैं इस एपिसोड में, ये नवी मुंबई रियल एस्टेट के एक नामचीन डेवलपर्स, एक लेगेसी जो चल रही है, एक रेपुटेशन की बात है, जहां भरोसे की बात है, उनसे हम आज मिल रहे हैं। कामधेनु रियलिटीज से के जो मैनेजमेंट हैं, जो बेसिकली इसे चला रहे हैं, सुरेंद्र सबलोग जी, मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। एंड ऑफ कोर्स द यंग एंड डायनेमिक करण सबलोग, जो लेगेसी आगे लेके चल रहे हैं। सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे कि कामधेनु जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, आज बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पे पहुंच गए। नवी मुंबई रियल एस्टेट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, उसमें कामधेनु का नाम एक बहुत बड़ा नाम आता है। किस तरह से सर आपका विजन था और आज कहाँ देखते हैं? और ऐसा था कि सिटी डेवलप हो रही थी। जब हम आए थे यहाँ 1971 में, तब तो कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुई। हमने 1985 में एज ए डेवलपर करके हमने शुरू की। बट उसके बाद तो सर न्यू मुंबई में लैंड टाइटल सिडको की लैंड है, उससे कोई इशू नहीं आता है। और ग्रोथ बहुत हुई है, न्यू मुंबई की ग्रोथ काफ़ी ग्रोथ हुई है। और ख़ास करके 1992 के बाद जब लोकल ट्रेन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यंग ब्लड बहुत मैटर करता है, बट इफेक्टिवली जिस तरह से आपने ओवर द इयर्स अपनी कंपनी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, लेट अस टॉक अबाउट दैट फर्स्ट कि क्या नया चीज़ें आप लाई हैं, बिकॉज जिस तरह से प्रोजेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो सर, कामधेनु इज द ओल्डेस्ट रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक विश्वास जगाने वाला और एक सपने साकार करने वाला ब्रांड कामधेनु रियलिटीज है। तो सर, कामधेनु में ऐसा है कि वी आर नॉट अ प्रोडक्शन हाउस। वी डोंट जस्ट बिलीव इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एवरी प्रोजेक्ट इज अ पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट सर। और ये जो कंपनी है, ये एक पैशन ड्रिवन कंपनी है। हर प्रोजेक्ट में एक अलग विजन होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग टारगेटेड ऑडियंस होता है, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में कुछ नया कर कर दिखाता है। तो सर, आप कोई भी हमारे 2 प्रोजेक्ट्स देखेंगे, दे वोंट हैव द सेम एलिवेशन, दे वोंट हैव द सेम कलर कॉम्बिनेशन, दे वोंट हैव द सेम एमिनिटीज। हर एक नए प्रोजेक्ट में पिछले से कुछ नया बेहतर होता है, एंड वी कम्पीट ओनली विद आवरसेल्व्स। तो सर, आई ऑलरेडी हैड अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद। तो कंपनी पहले ही एक ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। जब मैं आकर मैंने कंपनी में अपना जो भी योगदान दे सका दिया मैंने। सो आई वुड से सर कि हमने जो है पिछले कुछ सालों में कामधेनु का विजन को कम्प्लीटली रीएस्टैब्लिश किया है। कामधेनु के फ्यूचर को रीशेप करने की कोशिश करी है। वी हैव बिकम आई वुड से मोर डाइवर्स देन वी वर इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। और आई वुड से सर, मेरे आने के बाद में हमने एक कमर्शियल पोर्टफोलियो को काफ़ी एक्सपेंस दिया है हमारी कंपनी में। दैट इज़ वन ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट आई वुड से वी हैव डन नाउ। आप लोगों का जो इस तरह से रोल रहा है, जिस तरह से आपने एनविजन किया अपनी कंपनी का प्रोग्रेस, उसके बारे में कुछ बताइए। और कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं? सब देखिए, हमारी प्रायोरिटी शुरू से ये रही है कि लोकेशन पहले होती है। सबसे बेस्ट लोकेशन है वही काम करना, टाइम पे डिलीवरी देना, अच्छी क्वालिटी करना। और जहाँ नए नए जैसे नोड डेवलप हो रहे थे, जैसे शुरू में वाशी हुए हैं, फिर नेरुल शुरू हुआ, बेलापुर शुरू हुआ, तो हमने ये देखा कि जहाँ बेस्ट लोकेशन है, जो नोड अपकमिंग है, जैसे कमर्शियल के लिए CBD बेलापुर वॉज द बेस्ट एंड स्टिल इट इज़ द बेस्ट। बाकी
रेजिडेंशियल वाशी नेरुल ये काफ़ी डेवलप हुए हैं, तो उस तरफ हमने ज़्यादा ध्यान दिया और लोकेशन की तरफ, क्वालिटी की तरफ और टाइमली पोजीशन देने की तरफ। जो आप कह रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं कि हर एक में नयापन होता है। चाहे जिस तरह से एक जो लैंडमार्क खारघर का प्रोजेक्ट आपने जिस तरह से शुरू हो गया था कि सब देखते रह गए थे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पॉसिबल है। उसके बाद जिस तरह से कंटिन्यू हो रहे हैं एमआईडीसी को जिस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में बताइए एंड एमआईडीसी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स कैसे सोचा? सर अभी पिछले 3-4 सालों में एमआईडीसी का लैंडस्केप जो है पूरी तरह बदल चुका है। एमआईडीसी इज़ नो मोर जस्ट एन इंडस्ट्रियल जोन। अब वहाँ पर आईटी पार्क्स आ रहे हैं, वहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर रिटेल कंपोनेंट आ रहा है एंड नाउ रिसेंटली इन द पास्ट 1.5-2 years एमआईडीसी ने अपने दरवाजे रेसिडेंट्स के लिए भी खोल दिए हैं। सो हमारा ऐसा है सर एट कामधेनु दैट वी डोंट वेरी मच बिलीव इन लोकेशन क्रिएशन कि कहीं जाकर टू स्टेप सेलिंग नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं लोकेशन को बेचूं फिर मैं प्रोडक्ट को बेचूं। सो वी डोंट बिलीव इन लोकेशन क्रिएशन। हम ये चीज़ में बिलीव करते हैं कि आई मीन व्हाट आई एम सेइंग माइट बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट किसी भी नोड के आगे अपर लोअर या एनएक्स लगाना पड़े ना तो वहाँ कामधेनु की रुचि थोड़ी कम होती है। वी बिलीव इन जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट नॉट सेलिंग द लोकेशन फर्स्ट। तो आप देखेंगे कि एनएमएमसी जुरिस्डिक्शन के दायरे में अब लैंड रीडेवलपमेंट के सिवा ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं। तो एमआईडीसी हमने ऐसा सोचा कि दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कीप वर्किंग विद इन सिटी लिमिट्स। तो जिस तरह से हमने एमआईडीसी में काम शुरू किया वी वर वेरी हैप्पी द रिस्पॉन्स वी गॉट। वी स्टेड विद इन द सिटी लिमिट्स, लोकेशन क्रिएशन हमें करना नहीं पड़ा। एमआईडीसी एज अ बॉडी से हमें अप्रूवल्स में काफ़ी सहयोग सहायता मिली। सो आई वुड से सर और प्लस एमआईडीसी में और एक बेनिफिट था कि लार्जर लैंड पार्सल्स अवेलेबल थे टू द ट्यून ऑफ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ ऐसे लैंड पार्सल्स अवेलेबल थे। इनमें एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है बिकॉज ऑफ द मिक्स्ड यूज परमिसेबल इन एमआईडीसी नाउ इन द न्यू सीडीसीपीआर। तो उससे क्या हो रहा है सर, एक वॉक टू वर्क कल्चर रीएस्टैब्लिश हो रहा है। एक जैसा आईटी पार्क कल्चर बैंगलोर और पुणे में कुछ सालों पहले देखने मिला था जिसका बूम हुआ था सर, अब वो एमआईडीसी के नवी मुंबई वाले बेल्ट में दोबारा देखने को मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मार्केट आई वुड से सर। बहुत बेसिक चीज़ें आपने बहुत ज़बरदस्त फॉलो की। सर आपने बहुत टफ टाइम्स देखे हैं। आज नवी मुंबई एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, रियल एस्टेट मार्केट का बहुत ब्राइट आउटलुक है, उसको किस तरह से आगे लेके जाना है वो है। बट आप लोगों ने तो एक ट्रायल एंड एरर, लर्निंग प्रोसेस और बहुत मुश्किल टाइम भी देखा है। बिल्कुल जी, 1996 एंड 97 से लेके 2000 तक, तो दैट वाज द वर्स्ट पीरियड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, नॉट ओनली इन नवी मुंबई बट एवरीवेयर। बहुत ही बुरा टाइम था बट किसी ऊपर वाले की मेहरबानी से निकल गया, ये तकलीफ भी निकल गई। बट आप देखिए जो 3000 रुपये स्क्वायर फीट की चीज़ थी वो 600 पे आ गई थी, तो आप यू कैन इमेजिन कि कितना डाउनफॉल रहा था। पर ऐसे में भी आपने अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखे। तो ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। हमने देखा कि भाई देखिए बुरे टाइम पे आदमी को डट के रहना चाहिए, अदरवाइज ये मुसीबतें आती रहती। रियल एस्टेट में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन कोई नया एडवेंचर नहीं होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जिस तरह से आपके यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और अब आप इंटीग्रेटेड कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ आपके कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या? सर अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वेयर वी हैव डन सम ब्यूटीफुल प्लानिंग इज एक हमारा आरपीजी लाइफ स्पेसेस करके एक देयर इज अ लोकेशन वेरी क्लोज टू आईकिया, वो एक 4 एकड़ की टाउनशिप बना रहे हैं हम। शरयू मोटर्स ह्युंडई का जो एक शोरूम हुआ करता था सर तुर्बे में मेन रोड पर, वहाँ पे हम एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बना रहे हैं। तो जब मैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप कहता हूँ सर, सो देर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ रिटेल टू इट जहाँ पर आपके रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, कैफ़ेज़ ये सब चीज़ें आ जाती हैं। देन यू हैव आईटी ऑफिसेज जहाँ पर आपका कमर्शियल बिजनेस ऑफिस स्पेसेस आ जाते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ एमिनिटीज़, यू हैव अ लॉट ऑफ कार पार्किंग एंड एक रेसिडेंशियल कंपोनेंट आ जाता है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। क्योंकि अब आप देखेंगे जो काफ़ी सेंट्रल डेवलप्ड फुल्ली ब्रूड नोड्स हैं नवी मुंबई के जैसे सानपाड़ा, नेरुल, वाशी, बेलापुर, यहाँ पर रेसिडेंशियल इन्वेंट्री हैज़ बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। तो एमआईडीसी की रेसिडेंशियल की शुरुआत होने सर ये प्राइसेस वापस दोबारा एक सेमी अफोर्डेबल से शुरू हो रहे हैं।
सो दैट इज द रीजन रेसिडेंशियल कमिंग इनटू द मिक्स इज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस, क्योंकि जो डेवलप नोड्स है यहाँ पर अभी घर खरीदना काफी महंगा हो गया है। क्योंकि एनओएमसी एरिया में घर खरीदना बहुत बड़ी बात हो गई है, और आप जिस तरह से आप इंटीग्रेटेड कॉलोनी विद इन एमआईडीसी कर रहे हैं, मतलब मैं वहाँ रहूँ भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है और जॉब भी वहीं पे करूँ। एग्जैक्टली सर। ये जिस तरह से डेवलप हो रहा है, हम रियल एस्टेट मार्केट भी अगर बात करें नवी मुंबई की, एमआईडीसी नॉर्मली बहुत नोटोरियस था कि भाई पोल्यूटेड एरिया, एमआईडीसी कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह, वो पूरा लैंडस्केप अब चेंज हो रहा है। आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने किए थाने बेलापुर रोड पे कोपरखेना के पास में, उनके बारे में बताइए, बिकॉज दैट वाज आल्सो बिग रिस्क एक्चुअली कि यहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। सर जब हमने पहले हमारे एमआईडीसी के प्रोजेक्ट की शुरुआत की विच वॉज नियर कोपरखेरने, वहाँ पर सर हमने क्या किया इज दैट वी ब्रॉट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ बी योर ओन बॉस अगेन, कि हमने छोटे छोटे ऑफिस से शुरुआत की। हमने रियलाइज किया कि एनी नोड की जो मैक्रो लेवल प्लानिंग होती है, वहाँ पर द मिक्स ऑफ रेसिडेंशियल टू कमर्शियल इन्वेंट्री इज 90% to 10%। सर अनफॉर्चुनेटली आज नवी मुंबई में वो नंबर 5% पर भी नहीं है। So we realized not a lot of developers are willing to take this risk. Not a lot of developers are willing to venture into this area of expertise. तो हमने एक रिस्क लिया सर। हमने सोचा कि let's start with the concept of office concept that everybody can afford. तो हमने 400 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया के ऑफिस से शुरुआत की। इवन आर आर्किटेक्ट्स वर स्केप्टिकल कि यार करण 400 स्क्वायर फुट में क्या ही आप किस तरह का स्पेस बैठा पाओगे, क्या वर्किंग होगी, इट विल बी अ टू मच ऑफ अ क्रैम्प्ड स्पेस। बट सर इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक शो ऑफिस बनाया वेयर वी पुट इन द एक्चुअल फर्नीचर प्लेसमेंट, पैंट्री। 400 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के ऑफिस में हमने एक पैंट्री फिट की, एक वॉशरूम फिट किया, देयर वाज अ वेट लाइन इन इट। सो उस तरह से एक तरह की कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो गई कि हर आदमी जैसे एक घर का खुद के सपना देखता था, तो उसके साथ वो अपने ऑफिस ओनरशिप का भी सपना पूरा कर पाए। तो सर जो इतने सालों से चलता आया है, रोटी कपड़ा मकान, उसमें हमने दुकान जोड़ दिया सर। और यही जो वैल्यूज थे जो आपने अपने बिजनेस में जो दिखाई दिए कामधेनु में, वही अपने बेटे में भी आए, और ये लेगेसी फिर आगे बहुत बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मेरे बेटे को मुझसे ज्वाइन करके आई थिंक अराउंड 13 साल हो गए, तो इतने वही फॉलो किया और प्रॉपरली मुझसे अच्छा बेटर कर रहा है। देख रहा था कि कैसे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन कैसी होनी चाहिए, दैट इज द प्रायोरिटी। और क्वालिटी देना, काम टाइमली पोजीशन देना, ये चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया। और एजुकेशन तो काम आती है, आफ्टर ऑल बिल्डर एसोसिएशन में भी रहा ये काफ़ी साल, अभी भी है। लेकिन बस इसका ये विजन था कि भाई न्यू बॉम्बे डेवलप बहुत ही अच्छी तरह होगा। और जैसे एयरपोर्ट आ रहे हैं, जैसे जितने नई डेवलपमेंट हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ रहा। तो इसने कंटिन्यू किया लेगेसी को और आगे बढ़ा रहा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी से। और टेक्नोलॉजी और डिजाइन का भी आप बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। सर कामधेनु में जो टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है, जो लेवल ऑफ डिटेलिंग होती है सर, आई कैन अश्योर यू वो और कोई डेवलपर नहीं करता है। बिकॉज आई टेल यू सम माइक्रो डिटेल्स सर, जो शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। आज आप ऑफिस में बैठते हैं, सो स्मॉल डिटेल्स लाइक व्हेन वी सिलेक्ट द ग्लास फॉर आवर ऑफिस बिल्डिंग्स, वी मेक श्योर कि उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतनी हो कि आपकी एयर कंडीशनिंग का बिल मिनिमाइज हो जाए। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन, सो इतने लेवल की डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर दूसरी उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी हैव डन डिटेलिंग, आप टेक्नोलॉजी की जैसे बात कर रहे हैं, वी गॉट इन न्यू बॉम्बे's फर्स्ट डेस्टिनेशन कंट्रोल एलिवेटर्स फ्रॉम फूजी टेक टू आर प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट इन खारघर। तो ये कुछ उदाहरण है सर। देन वी हैव अ लॉट ऑफ मोर एग्जांपल्स टू गिव, बट there is a lot of fine tuning done in the technology that is used in the construction sir. करण, जिस तरह से आप मार्केट को समझ रहे हैं आज, जैसे सर ने भी कहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी तो एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है, और हालांकि एयरपोर्ट के नाम पे नवी मुंबई को बहुत सालों से मार्केट किया गया, बट नाउ इट्स गोइंग टू बी अ रियलिटी। और बाकी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स, MTHL बोले, ये सब बोले, इन सब सिनारियोज में, क्योंकि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, हाउ डू यू से इट? सर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी आपने बात की, ये सारे सपने अभी साकार हो चुके हैं। जी। तो
नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा नहीं है, वो आ चुका है। जी। सो जैसे आप सबको पता है कि अभी T1 के बंद होने की तैयारी है, वो सारा का सारा ट्रैफिक रीरूट कर दिया जाएगा फ्रॉम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। MTHL आने से कि हम सोचते हैं कि एक ब्रिज आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोग साउथ मुंबई में रहते थे और जो लोगों के काम, प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज XYZ सब पनवेल एरिया में थे, तो सर देयर ट्रैवल टाइम हैज़ रिड्यूस्ड बाय 50%। मतलब अगर उन्हें जो चीज़ के लिए 2-2.5 घंटे लगते थे, आज 1 घंटा भी मुश्किल से लग रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट आने से, एयरपोर्ट जब कहीं भी आता है वो अपने साथ एक इकोसिस्टम लेकर आता है सर। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। एयरपोर्ट आने से सिर्फ रेसिडेंशियल मार्केट, सिर्फ कमर्शियल मार्केट ही अफेक्ट नहीं होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। काफ़ी चीज़ों की उसमें उस टाइम पर रिक्वायरमेंट आ जाती है। जैसे आपने देखा दिल्ली में जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया तो दिल्ली में एक एरोसिटी क्रिएट हुआ। जी। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब एरोसिटी 2 आ रहा है। तो मैं कहूँगा अभी नवी मुंबई के अच्छे टाइम की और नवी मुंबई की ग्रोथ स्टोरी की एक शुरुआत भी हुई है एक तरह से, और एक स्टेप 2 भी आ गया है। तो जिस तरह से आप ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं और आपके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रहे हैं और अब आप इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं, इन पे किस तरह से सर देखते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स कहाँ-कहाँ आपके आ रहे हैं? तो सर अभी ऐसा है कि जैसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हमारी 2 जगह पर आ रही हैं। वन इज़ इन द लोकेशन व्हिच वाज़ प्रीवियसली जहाँ पर शरायू ह्युंडई का शोरूम था, वहाँ पर रिटेल, IT ऑफिसेज़ एंड रेसिडेंस का एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रही है। IKEA से लगभग 1 किलोमीटर आगे, लेस देन हाफ अ किलोमीटर अहेड, हमारी और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रही है व्हिच वाज़ प्रीवियसली अ फैक्ट्री रन बाय RPG लाइफ साइंसेज़। उसमें भी अगेन रिटेल, रेसिडेंस एंड कमर्शियल का मिक्स आ रहा है। वी आर डूइंग आवर फ्लैगशिप कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो सेंटर वन मॉल पहले था उसे हम डेमोलिश करके कामधेनु सेंटर वन के नाम से एक पूरी एक हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं विद हाई स्ट्रीट ऑन द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। Then we are coming up with a ultra luxury commercial project next to Raghuleela Mall, which will be called Kamdenu Conquest. तो इसके अलावा ये मैंने अभी IT कमर्शियल की बात कर ली, वेयर कामधेनु हैव सॉर्ट ऑफ गॉटन टाइपकास्ट कि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो बट ऐसा अब नहीं रहा। वी हैव एक्सपेंडेड आवर रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो इन अ लार्ज वे रिसेंटली। हमारा फ्लैगशिप रेसिडेंशियल अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट अभी शुरू है, जिसकी डिलीवरी हम 2 साल में देने वाले हैं। दैट इज़ कॉल्ड कामधेनु क्राउन। इट्स इन द एब्सोल्यूट मोस्ट एलीट लोकेशन ऑफ नवी मुंबई, पाम बीच रोड पर ये प्रोजेक्ट है। वी आर एक सानपाड़ा सेक्टर 8 में कामधेनु वोग के नाम से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिया है। देन कामधेनु ग्रैंडियर राइट नेक्स्ट टू इट इज अगेन अ लिटिल ओवर एन एकड़। वो एक्सक्लूसिव 2 BHK का प्रोजेक्ट है, विच इज आई थिंक 50% रेडी विद RCC वर्क। उसके अलावा हमारे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रेसिडेंशियल, बोथ रेसिडेंशियल इन नेरुल। वन इज इन सेक्टर 13 नेरुल, ये आपके साइन पनवेल हाईवे पर है। इट्स अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम DY पाटिल एंड मैरियट, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, and we are coming up with a exclusive 2 BHK residential project in Nerul sector 12 again. So sir अभी क्या है, कमर्शियल पोर्टफोलियो कामधेनु का ऐसा, इट इज अमंग द लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्टफोलियोज ऑफ एनी डेवलपर इन नवी मुंबई। उसके अलावा सर साथ ही साथ अभी हमारा रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो भी हम काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताइए आपने कि आप कमर्शियल के साथ-साथ रेजिडेंशियल में तो जा ही रहे हैं, अफोर्डेबल भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप, अल्ट्रा लग्जरी की भी आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह से आप मार्केट देखते हैं? सर जैसा मैंने आपको बताया, वी have established ourselves as the most trusted developer of Navi Mumbai in terms of quality, timely delivery, after sales service, CP friendliness, you name it. तो डिमांड हमारे साथ ऐसा रहा कि जिस मार्केट में हम नहीं थे, वहाँ के कस्टमर्स और वहाँ के CP से हमें ये रिक्वेस्ट आती थी कि आप XYZ लोकेशन पर आप भी एक प्रोजेक्ट करिए, विल बी वेरी कंफर्टेबल इन बाइंग विद अ ब्रांड लाइक योर्स। ये सेगमेंट को भी तो वो डिमांड कर आने से सर वी हैव डन, हमने एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किया है घोट कैंप नियर तलोजा फेज 2 पे, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद अ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन, वन इज इन रोहिंजन, एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर इन रोहिंजन। तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट में हम ये 2 प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सो जो प्रोजेक्ट जो मार्केट में हम नहीं थे, वहाँ के CPs और वहाँ के कस्टमर्स से हमें ये डिमांड आया, सो वी रियलाइज दैट वी ऑलरेडी हैव अ रेडी क्लाइंट एंड CP बेस, सो व्हाई नॉट कैटर टू दैट मार्केट।
सर जिस तरह से अभी प्रोजेक्ट्स करण बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? सब देखिए, लग्जरी का ऐसा है, मुझे लग रहा है यहाँ जो सेल हो रही है, प्राइजेज चेंबूर से घाटकोपर से ज़्यादा हो चुकी लग्जरी फ्लैट्स। और आई थिंक अनदर ईयर और टू ये 50,000 रुपीज कारपेट पे पहुंच जाएगा सब लग्जरी प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट की शॉर्टेज है। अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं पाम बीच पे, क्राउन नाम है जिसका, उसमें 5 BHK का कॉस्टिंग अराउंड 9 करोड़ तक जा रहा है, तो लोग अफोर्ड कर रहे हैं। अब डिमांड ज़्यादा लग्जरी का आ रहा है, अफोर्डेबल भी कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट अपर खारगर में, बट ज़्यादा डिमांड, हम ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि हम जितना हो सके सिटी लिमिट में काम करें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की तो हमेशा बात होती ही रही है, बट जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि MTHL और ये बाकी प्रोजेक्ट्स की वजह से साउथ मुंबई का भी जो क्लाइंट है जी। वो भी शिफ्ट हो रहा है और उनके लिए फिर इस तरह की अल्ट्रा लग्जरी लिविंग नहीं थी, तो ये भी आज डिमांड आ गई है। जी, ऐसा लग्जरी कंफर्टेबल सब होना चाहिए। अभी हमारा प्रोजेक्ट एक और आ रहा है उल्वा में, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली लग्जरी नहीं है, बट अफोर्डेबल आ रहा है। वो प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं स्टेशन के पास में। अभी डिमांड देखिए ज़्यादा है अफोर्डेबल की, नो डाउट, कि जैसे बॉम्बे से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो प्राइजेस जो यहाँ मिल रहे हैं वो बॉम्बे में वो अफोर्डेबल। अब क्या हो गया, चेंबूर और घाटकोपर में जो प्राइजेस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट न्यू बॉम्बे के रेट में आ गए, अफोर्डेबल भी। तो आउटस्कर्ट में ज़्यादा करने से ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकता है, बट आज लैंड प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं तो आई थिंक ये अफोर्डेबल सिर्फ नाम का रह जाएगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है करण के अल्ट्रा लग्जरी की तो हम प्रोजेक्ट की तो बात कर रहे हैं, बट ये माना जाता है कि भाई NMC एरिया में, नवी मुंबई एरिया में भाई आप घर खरीदना भूल जाओ, क्योंकि लोग पनवेल एंड बियॉन्ड पनवेल के आजकल ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। नहीं सर, मेरा मानना ऐसा नहीं है, बिकॉज वी हैड अ फ्रेंड फ्यू मंथ्स बैक, उन्होंने कहा कि मुझे खारगर में 2 BHK चाहिए, तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए इन फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट फ्लैट फॉर माई बजट। तो सर हमारा उस टाइम पे कोई भी खारगर में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चल नहीं रहा था। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 करोड़ रुपए के बजट में उन्हें खारगर में कोई 2 BHK नहीं मिला। Whereas if you see, we are selling 2 BHKs in Nerul, in the prime city area of Nerul. We are selling them at about 1.75, 1.8 CR. We are selling 3 beds at close to about 2.8 CR. तो सर अब बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं रह गया है, एंड आई बिलीव इवन डेवलपर्स लाइक द बिगर नेम्स, जो मुंबई के कुछ डेवलपर्स हैं, अभी वो भी MIDC में रेसिडेंशियल मार्केट में एंटर कर रहे हैं, वेयर दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग प्राइसेस रेसिडेंशियल फ्लैट्स एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो आई वुड से सर सिटी लिमिट्स के अंदर प्राइसेस आर स्टिल प्रिटी रीजनेबल, और आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, आई मीन डिसेंट प्राइस में आपको यहाँ पर अच्छे फ्लैट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे टाउनशिप्स में आपको घर मिल जाते हैं। ये एक और बात करना चाहेंगे, जिस तरह से रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है नवी मुंबई में, बिग नेम्स आर आल्सो गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड। आप जो एस्टेब्लिश्ड हैं यहाँ पे, रेप्यूटेड हैं, कंफर्ट जोन में हैं यहाँ के, हाउ डू यू सी दिस कंपटीशन देखते हैं आप या किस तरह से? नहीं, आई वुड लुक एट इट एज मार्केट क्रिएशन सर। मैं कंपटीशन की तरह नहीं देखता, बिकॉज आई सी इट एज अ मार्केट क्रिएशन। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अगर मुंबई, हिंदुस्तान के नामचीन लोग नवी मुंबई में आकर काम करना चाहते हैं, तो आई टेक प्राइड इन इट एज अ नवी मुंबईकर, नॉट जस्ट एज अ डेवलपर। और क्या हो जाता है सर कि एक मार्केट क्रिएशन आ जाता है। देखिए सर, कोई भी एक डेवलपर आए, चाहे XYZ कोई भी हो, he will not be able to cater to all demands in the market. Similarly, मैं भी हर डिमांड को cater नहीं कर सकता। So there are always voids, जो X नहीं फुलफिल कर सकता वो कामधेनु फुलफिल कर सकता है, जो कामधेनु नहीं फुलफिल कर सकता। प्रोडक्ट मिक्स में आपको साइजेस में काफ़ी डिफरेंशिएशन आता है, बट जितना मैंने नवी मुंबई एज अ मैक्रो मार्केट के बारे में समझा है सर, मुंबई के डेवलपर्स और अदर नेशनल लेवल डेवलपर्स, वो नवी मुंबई में कोई भी ऐसा मैं बड़ा नाम नहीं जानता जो एक से दूसरा प्रोजेक्ट कर चुका है सर। Right. ये ट्रेंड आप भी समझे होंगे। तो नवी मुंबई के जो लोकल 10 डेवलपर्स जो यहाँ 20, 25, 30 साल से मार्केट को रूल कर रहे हैं, दे आर द ओनली वंस हु हैव बीन एबल टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली टाइम। बाकी ऐसी कोई भी मार्केट नहीं है सर। True. थाने टुडे इज बीइंग रूल्ड बाय आउटसाइडर्स।
बिल्कुल। आप चेंबूर की बात करिए, आप घाटकोपर की बात करिए, आप दादर मुलुंड की बात करिए। मुंबई एक ऐसा मैक्रो मार्केट है जहां कोई भी लोकल डेवलपर को छोड़ के बाहर वाला डेवलपर दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। ट्रू। एक बहुत बड़े डेवलपर हैं, हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स हैं। उन्होंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पूरे अपने लाइफ टाइम में एक ही प्रोजेक्ट में नुकसान किया और वो प्रोजेक्ट मैंने जो खारगर में किया था। अच्छा। So it's not that Kharghar is bad as a macro market, but राइट। Mumbai players are not able to succeed in our market. ये सर क्या खास बात है कि आप लोगों ने अपने फाउंडेशंस इतने स्ट्रांग कर लिए हैं? कि इतने साल से काम कर रहे हैं सब, एक ब्रांड बनाना, टाइमली ये देना, पोजीशन देना, उससे क्या हो गया, सब लोगों को अवेयरनेस हो गई कि ये पुराने बिल्डर हैं, ये लोग डिलीवर दे देंगे। बॉम्बे के बिल्डर सब जो भी आते हैं सब, जैसे करण ने अब बताया कि एक या दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ लोकल इश्यूज बहुत हैं। तो लोकल इश्यूज को रिजॉल्व करना उनके बस का काम नहीं होता, क्योंकि हम लोकल ही हो गए, इतने साल से रह रहे थे, वी आर ऑलमोस्ट अ लोकल। तो इस हिसाब आप ये सब बेसिक चीजें भी करते हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह से दिख रहा है कि जिस तरह से अडेप्ट किया है आपने चेंजेस को। Sir, I would like to add something to this. एक डिफरेंट चीज है नवी मुंबई के डेवलपर ब्रीड के बारे में, इज दैट वी वर्क ऑन अ केपेक्स हेवी मॉडल। हम पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं सर। यहाँ पर सिडको के टेंडर प्लॉट्स हैं। आपने सुना होगा पिछले साल वन प्लॉट वॉज ऑक्शन फॉर 5,55,000 रुपीज स्क्वायर मीटर, 350 करोड़ रुपए में 1.25 एकड़ जमीन। उसी टाइम पर आया कि मुंबई के बड़े नामचीन डेवलपर ने बैंड स्टैंड पे 350 करोड़ में 5,000 मीटर जमीन ली थी। तो व्हाट हैपेंस इज सर, मुंबई में ये डेवलपर्स 1% करते हैं, बट नवी मुंबई के मैक्सिमम डेवलपर्स सर पहले अपना पैसा लगाते हैं। वी वर्क ऑन अ केपेक्स हेवी मॉडल, जो मुंबई के डेवलपर्स नहीं करते सर। मुंबई के डेवलपर्स ज्यादातर लैंड की कमी होने के कारण या तो वो सोसाइटी रीडेवलपमेंट करते हैं, या वो एसआरए करते हैं, या वो डिफंक्ट पुरानी मिल्स खरीद के डेवलप करते हैं। तो दैट इज अ वेरी केपेक्स लाइट मॉडल सर। बाकी उनका जो मेजर खर्चा है अप्रूवल्स में, उन्हें इंस्टॉलमेंट स्कीम मिलता है, हालांकि हमें भी इंस्टॉलमेंट स्कीम मिलती है, बट लैंड का पैसा हम अपनी जेब सर लगा के काम करते हैं सर, जो मुंबई के कोई भी डेवलपर के मॉडल में इतना केपेक्स हैवी मॉडल फिट नहीं होता है सर। ये भी बहुत ज़रूरी बात हो गई है कि जो लैंड कॉस्ट है लगातार बढ़ते जा रहा है और ये ऑक्शंस में जिस तरह से रिकॉर्ड प्राइसेस आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। टू सम एक्सटेंट सर, बट जैसा मैंने कहा नवी मुंबई में जैसे 10 बड़े डेवलपर्स हैं, हर एक की अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। सो आई वुडंट से इट मेक्स इट अ चैलेंज, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया, वी कामधेनु इज अमंग द वेरी फ्यू प्लेयर्स who has a predominance in सिडको, NMMC एरिया एंड MIDC। नवी मुंबई के कुछ डेवलपर्स हैं MIDC में काम नहीं करते हैं, कुछ डेवलपर्स हैं जो सिर्फ सोसाइटी रीडेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो वी ऑल हैव आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। तो सर ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लैंड बैंक के कारण कोई चैलेंज हमें आ रहा नहीं। सर हाउ डू यू सी थिंग्स फॉरवर्ड? आपने तो पूरी मेहनत करके एक विजन खड़ा कर दिया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर दिए, आज करंट लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कभी कभी विजन्स भी कुछ अलाइन होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ ना, तो मैं, मेरे कहने से पहले करण यही बोलता था, हमारी जो सोच है एक दूसरे की बहुत मिलती जुलती है। ऐसा नहीं है मेरे मन में कुछ है तो अगर मैं कल कोई चीज़ बोलूँ करण को कि ऐसा करना चाहिए, बोला पापा मैं यही सोच रहा था, तो क्या होता है, वेवलाइन मिल जाए आदमी की तो उससे इजी हो जाता काम। हमारा इंटरनल वर्किंग सिस्टम इज वेरी वेरी क्लियर सर। माय फादर सेट्स द लार्जर विजन ऑफ द कंपनी और उसे एग्जीक्यूट करना इज my job. So he has always set the larger vision for the organization कि now अभी हमें MIDC में expansion करना है, अभी हमें टेंडर प्रोजेक्ट्स पीछे। तो सर फ्रॉम 21 to 23 वी डिड एक्सक्लूसिवली टेंडर प्लॉट्स, फिर 23 ऑनवर्ड्स हमने MIDC। तो ही सेट्स द लार्जर विजन फॉर द कंपनी एंड उसको फॉलो थ्रू करना इज व्हाट आई एम डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज वेरी नाइस बिकॉज अक्सर क्लैशेस इसी विजन को लेके हो जाते हैं कि आगे किस तरह से चले, बट आई थिंक दैट वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है एंड समझ मार्केट की आई थिंक बहुत अलाइन कर रही है। फाइनली करण, क्या आगे और प्लान्स हैं एंड हाउ डू यू सी द प्रोग्रेस अहेड? Sir, we plan to expand in all avenues of the market.
अभी ऐसा है सर कि नवी मुंबई में कोई नोड ऐसा रहा नहीं है जहाँ कामधेनु हैज़ नॉट एस्टैब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट ऐसा नहीं है जहाँ कामधेनु ने अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश नहीं किया है। बट वी हैव अ वेरी क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर एंड इज दैट वी विल केटर टू वॉट एवर द मार्केट डिमांड्स। और अब हम जो फ्यूचर में डिमांड देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं लार्जली टुवर्ड्स अ कमर्शियल की जो डिमांड आने वाली है सर एयरपोर्ट के कारण, जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज अ वॉइड दैट नीड्स टू बी फिल्ड इन नवी मुंबई एंड समबडी हैज टू टेक अप द टफ जॉब। मैं नवी मुंबई में सर 3 डेवलपर्स, आप भी शायद नाम लेकर ना बता पाएं कि जो इतने in such a driven fashion they are working in commercial projects. So this is a void we wish to fill, sir. Not only that, we are planning to expand into data centers, we are planning to expand into larger rental models, long term lease models. एंड उसके अलावा सर क्या है, जितनी भी डिमांड क्रिएशन हो रही है उसको देखते हुए वी आर थिंकिंग दैट वी विल डाइवर्सिफाई इनटू हॉस्पिटैलिटी आल्सो, बट दैट विल बी अ वेरी स्मॉल सेगमेंट, इट विल नॉट बी दैट एक्सटेंसिव। सो फाइनली आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे कि किस तरह से जिस तरह से आपका विजन आगे लेके चल रहे हैं करण, आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? रिगार्डिंग आवर कंपनी, थिंक हम करीबन अभी 60 लाख स्क्वायर फीट कर रहे हैं काम शुरू, ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद में 50 से 60 लाख स्क्वायर फीट का काम शुरू हो जाएगा। डिमांड तो बढ़ ही रही है, जैसे करण ने बताया कि डिमांड की कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट ग्रोथ बहुत अच्छी है न्यू बॉम्बे की। अच्छा, फ्यूचर इज़ वेरी गुड। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है डे बाय डे, ग्रोथ तो बहुत बढ़ेगी। और ख़ास करके आई फील इट, पहले लोग क्या होता था, कमर्शियल में कोई नहीं आ जाता कि इट्स अ वेरी रिस्की सब्जेक्ट, किसी ने भी रिस्क लिया नहीं। लकीली हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करके ट्राई कर लिया, तो वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो नो डाउट कमर्शियल की सप्लाई भी काफ़ी है कंपेयर टू रेजिडेंशियल, बट ग्रोथ भी वैसी हो रही है, डिमांड काफ़ी है कमर्शियल की। और न्यू बॉम्बे में जितनी डेवलपमेंट हो रही है अभी, जैसे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे न्यू बॉम्बे में सेकंड BKC बन रहा है खारघर में। आई थिंक अनदर 5 ईयर टोटली न्यू बॉम्बे, जैसे दिल्ली के साथ गुड़गांव डेवलप हो गया, विच इज़ अ टफ कॉम्पिटिटर टू दिल्ली इटसेल्फ। तो वही हाल हो जाएगा बॉम्बे की, जो रेट्स हैं करीबन ऑलमोस्ट सेम रेट्स यहाँ हो जाएंगे। और आप लोगों ने एक हेड स्टार्ट ले लिया है। ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट्स। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत जानकारी मिलेगी। आप सबको को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। बिजनेस के सितारे में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।